Good afternoon, students. Welcome in this platform of Vidhya Juris. Today, we are here to discuss with all of you the concept of transfer of property and the transferable property. So, first of all, I would like to request you all that please take your Bare Acts, the Bare Act of Transfer of Property Act, for your better reference. So, in order to make yourself more attentive, more comprehensive, you have to take your Bare Act, and later you can tally the sentences which I would enchant here and make you understand. So, what is transfer of property under Transfer of Property Act? Transfer of property. As you all know, the Transfer of Property Act is a special legislation which deals exclusively with the transfer of property by act of parties. So there are various legislations in India which somehow regulates the transfer of property, means Negotiable Instrument Act, Sales of Goods Act, Insurance Act, and Indian Contract Act, and one Transfer of Property Act. So what was the need behind incorporation of this legislation? This legislation was needed to define, to enact a comprehensive law which regulates transfer of property by act of parties. Act of parties denotes the transfer between two living persons. ठीक है, तो आपको सभी को ये पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, सभी प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है. मूवेबल्स के बारे में भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं, इमूवेबल के बारे में भी इसमें प्रिंसिपल्स है ना. तो इसका जो चैप्टर सेकंड है, सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A, उसमें वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बताए गए हैं. ठीक है, एंड दिस लॉ एक्सक्लूसिवली डील्स विद द ट्रांसफर विच इज डन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. तो एक्ट ऑफ पार्टीज, अगर आप चैप्टर 2 की हेडिंग देखेंगे तो उस हेडिंग में ही ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. मींस दिस एक्ट डज नॉट डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, ट्रांसफर जो पार्टीज के एक्ट से जो ट्रांसफर किए जाएंगे उनको ये एक्ट रेगुलेट करता है. लॉ के ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो वो इस एक्ट से डील नहीं होंगे. ठीक है, वो कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या लॉ के प्रोविजन से ही डील होते हैं, बशर्ते सेक्शन 57 और चैप्टर 4 में कुछ प्रोविजंस हैं एक्सेप्शन के तौर पर दिए गए हैं जहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, तो सेक्शन 5 is that section which defines the transfer of property. What does transfer of property denotes for the purpose of Transfer of Property Act? है ना, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर्पस के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. ठीक है, तो सेक्शन 5 आप प्लीज उसे देखें बेयर एक्ट में, मैं यहां पर आपको समझाऊंगा सेक्शन 5 क्या है. Section 5 defines the transfer of property as, in the following sections, transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more living persons or to himself and one or more other living persons, and the transfer of property is to perform such act. So, section 5 में क्या बताया गया है? Transfer of property in the following sections means upcoming sections, the sections after section 5, है ना, 6 से लेकर के सेक्शन 137 के बीच में जहां कहीं भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा सेक्शन 5 में बताया गया है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस an act by which one living person conveys property either in present or in future
to other living person, to other one or more living person, or to himself and one or more other living person, and to transfer the property is to perform such act. तो इस प्रोविजन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट, है ना. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट, एक कार्य है ना. पार्टीज का एक एक्ट है, एक एक्शन है. विदाउट एक्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. If you look jurisprudential concept of property, you will find that property is the bundle of rights. It contains various rights. Generally, हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बोलकर जिस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज होती है फिजिकल असेट, फिजिकल थिंग, है ना. जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जिस चीज का, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे पास में ये मार्कर है ना. मैंने इसे लिया हुआ है और ये प्रॉपर्टी है, तो हम इसे प्रॉपर्टी कहते हैं. बट एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी वो चीजें नहीं है. प्रॉपर्टी का मतलब है इंटरेस्ट, है ना. अगर आप जुरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट में जाएंगे तो प्रॉपर्टी डिनोट्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मींस राइट, ठीक है. Every property contains bundle of rights, means right to possess, right to possession, right to retainment, right to retention, है ना, right to enjoyment, right to further alienation, right to destruction, right to transfer, etc. and etc. Every property contains bundle of rights, है ना. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्चुअली प्रॉपर्टी के नाम पर हम जिस चीज का ट्रांसफर करते हैं ना, वो एक्चुअली राइट्स का, इंटरेस्ट का ट्रांसफर है. ध्यान रखना इस बात को, ठीक है. उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सहायता की दृष्टि से कहा जाता है, इन ऑर्डर टू मेक अ कन्वीनियंस, ठीक है. कन्वीनियंस क्रिएट करने के लिए उसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है. एक्चुअली वो इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है. तो an act by which one living person transfers, conveys a property to another one or more living person, to one or more other living person, or to himself and one or more other living person, either in present or in future, is called transfer of property. तो बिना एक्ट के कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं हो सकता. मींस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द ट्रांसफर मस्ट बी इंटरवाइवस. ट्रांसफर मस्ट बी इंटरवाइवस. अब इंटरवाइवस का मतलब क्या है? ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस, बिकॉज it requires, every transfer under the transfer of property act requires some act between the parties. So this is the requirement of act which confines the transfer as intervivus transfer, ठीक है. The transfer must be done within lifetime of the transferor and transferee for the purpose of transfer of property act. इंटरवाइवस ट्रांसफर मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब है कि ट्रांसफरर को भी जीवित होना चाहिए, ट्रांसफरी को भी लिविंग होना चाहिए ट्रांसफर की डेट पर, ठीक है. तो एन एक्ट बाय विच वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स, कन्वेज property to another or more other living person, or to himself and one or more other living persons, ठीक है. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक लिविंग पर्सन ने अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे लिविंग पर्सन को कन्वे कर दिया है. अब प्लुरैलिटी हो सकती है, हो सकता है ट्रांसफरी एक से ज्यादा हो सकता है वो खुद भी ट्रांसफरी हो, है ना. फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक व्यक्ति खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है. कैसे? ट्रांसफरर हो सकता है कि वो एक अलग स्टेटस में है और ट्रांसफरी एक अलग स्टेटस में है. फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एज राम प्रकाश, एंड ही फर्दर क्रिएट्स अ ट्रस्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, है ना. जेड प्रॉपर्टी है, उसको ए होल्ड करता है एज ओनर, ठीक है.
और उसी का ट्रस्ट क्रिएट करता है और खुद को ट्रस्टी अपॉइंट कर देता है बी के बेनिफिट के लिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ बी, ए क्या हो जाता है? ट्रस्टी हो जाता है। तो ट्रस्टी के रूप में जो उसका लीगल स्टेटस है वो एक डिफरेंट है, और अपनी प्रॉपर्टी वो खुद को ही ट्रस्टी के रूप में ट्रांसफर कर रहा है ना। तो एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी जब कन्वे करता है तो उस कन्वेयांस को ही हम क्या कहते हैं? उस एक्ट को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 5 एंड ऑल अदर करस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करें तो सबसे पहली बात ये डेफिनेशन कहती है एन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात है एन एक्ट, देयर मस्ट बी एन एक्ट परपोर्टिंग कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एक्ट conveys the interest or not? So you can identify easily that a particular act conveys the interest or right over a property. How? There are various requirements under the law which signifies the conveyance of property. जैसे आप ये देख सकते हैं कि क्या उसने पोजीशन की डिलीवरी की, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराया। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसी डीड, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच कन्वेज द राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर राइट को कन्वे कर रहा है, इंटरेस्ट कन्वे कर रहा है, और वो इंस्ट्रूमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, या फिर उस प्रॉपर्टी का डिलीवरी दे दी गई है पोजीशन की, तो ये सब कुछ क्या है? एक्ट है। और इन्हीं एक्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पार्टीज ने ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एन एक्ट विच pertains the transfer, the conveyance of interest from one living person to another living person. Second, act must be done by a living person, ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है। वन लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी to another living person, means both persons, the person who act as a transferor of the property and the person who designated as transferee of property, both must be living at the time of transfer. Means the transfer, the required conveyance is inter vivus in nature. ट्रांसफरर को भी जीवित होना चाहिए ट्रांसफर की तारीख पर, और ट्रांसफरी को भी जीवित होना चाहिए, है ना। तो इसका ये होगा कि एक्ट मस्ट बी डन बाय अ लिविंग पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर लिविंग पर्सन, एंड इन फेवर ऑफ अनदर लिविंग पर्सन। अब ये अलग बात है कि इस लिविंग पर्सन में नेचुरल पर्सन भी इंक्लूड है और इसमें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी इंक्लूड है। मतलब एक जीवित व्यक्ति भी इसमें आएगा लिविंग पर्सन में, और इसमें कंपनी, फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेटेड हो या नहीं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। दे ऑल आर इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन, अंडर द टर्म लिविंग पर्सन। नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 5 में, अगर आप देखें कि इन दिस सेक्शन living person includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, association or bodies of individuals. Means that act which pertains the transfer, the conveyance of interest from one person to another must be done by a living person, and the word living person include नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। ठीक है, उसके बाद थर्ड, कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रोपेगेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। अंतरण होना ही चाहिए, ट्रांसफर होना ही चाहिए।
इंटरेस्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना ही चाहिए। अगर इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है टीपीए के पर्पस के लिए, है ना। स्प्रेड होना चाहिए इंटरेस्ट, ओनरशिप स्प्रेड होना चाहिए, पोजीशन स्प्रेड होना चाहिए, एंजॉयमेंट स्प्रेड होना चाहिए एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन के बीच में। और अगर स्प्रेड नहीं हो रहा है, अगर प्रोपेगेट नहीं हो रहा है, कन्वेयांस नहीं हो रहा है, तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं पार्टीशन। पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। व्हाई? बिकॉज इन पार्टीशन द शेयर विच already vested in the partners of the property allocated by the legal process which is known as partition। पार्टीशन में क्या होता है, जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उनके शेयर पहले ही वेस्टेड रहते हैं, उनमें प्रॉपर्टी उनकी ही रहती है, बस उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अलोकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सिंपली उनके जो शेयर्स होते हैं उनके नाम कर दिया जाता है, पार्ट कर दिया जाता है। तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ी है, उन्हीं की प्रॉपर्टी उन्हीं को अलोकेट कर दी गई, है ना। तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द इंटरेस्ट मस्ट कन्वेड फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर, है ना। कुछ नए राइट्स का क्रिएशन होना चाहिए, एक पर्सन ने कुछ नए राइट्स का क्रिएशन किया है किसी दूसरे पर्सन के फेवर में, तब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ है such act, such conveyance may be done either in present or in future, in present or future। तो ये जरूरी नहीं है ट्रांसफर के लिए कि ट्रांसफर तुरंत ही किया जाए तो ट्रांसफर माना जाएगा, है ना। देयर मे बी अ क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ such a nature, then the interest shall take effect after the passing of some time or on a definite date or on a definite year or on a definite age, है ना। जब कभी हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें दो प्रकार के इंटरेस्ट मिलते हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट और दूसरा कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ठीक है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और दूसरा कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ये लाइन कहती है कि ट्रांसफर प्रेजेंट में भी किया जा सकता है और ट्रांसफर फ्यूचर के किसी डेट पर भी डिपेंडेंट बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दैट थिंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर शैल ओनली अप्लाई टू ट्रांसफर बट नॉट टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट पर प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, वो फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ट्रांसफर हो सकता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, लेकिन प्रॉपर्टी प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग होना ही चाहिए, ठीक है। अब कैसे प्रेजेंट या फ्यूचर में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, सेल किया प्रॉपर्टी का, ठीक है, हाउस। ए सोल्ड हिज हाउस टू बी एंड देयर इज नो स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द गेटिंग ऑफ इफेक्ट टू द राइट, कि कब राइट इफेक्टिव होगा, इस चीज का कोई भी स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं दिया गया है उस ट्रांसफर में। और सिंपली उसने क्या किया है, सेल डीड रजिस्टर करा दी है, रजिस्ट्रेशन करा दिया सेल डीड का। द मोमेंट व्हेन सेल डीड गेट्स रजिस्टर्ड, बी इमीडिएटली गेट्स हिज वेस्टेड इंटरेस्ट ओवर सच प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही उस डीड का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बी को इमीडिएटली वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा ट्रांसफर है जो प्रेजेंट में किया गया है, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रांसफर देखिए, फ्यूचर ट्रांसफर देखिए। ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, एंड फर्दर ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू सी विथ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है। C is a person who is not in the existence, means it is unborn person for the purpose of transfer of property act. So the right which is created in favor of B is a limited right, is a prior life interest and limited right, ठीक है। तो the transfer which is created in favor of B is a transfer in present, but the interest which is created in favor of C is future interest. So it is permitted that a person can do
a transfer to create an either a future interest or present interest in a property. ठीक है, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है ना, और टू और मोर अदर लिविंग पर्संस को हो सकेगा, वन और मोर, है ना, सॉरी टू और मोर नहीं, वन और मोर अदर लिविंग पर्संस को ट्रांसफर हो सकता है ना, नंबर डजंट मैटर, है ना, ट्रांसफरी प्लूरल हो सकते हैं, ट्रांसफरर प्लूरल हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकेगा, लेकिन होने कैसे चाहिए, लिविंग पर्सन होने चाहिए, जीवित, इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। लिविंग का मतलब है इन एग्जिस्टेंस, इन एग्जिस्टेंस मतलब अगर किसी कंपनी ने कोई ट्रांसफर किया है तो उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो चुका है ना, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए तो हम उसे लिविंग पर्सन मानेंगे। ठीक है, तो एन एक्ट by which conveyance of interest takes place, act must be done by a living person in favor of another living person, another or more living person. Conveyance of property means there must be a conveyance of interest from one living person to another living person. Without conveyance, we cannot say that particular transaction is the transfer of property, and that conveyance may be done in present or in future. ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट ट्रांसफर उसका प्रेजेंट या फ्यूचर कभी भी हो सकेगा इफेक्टिव। तो ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो सेक्शन 5 में बताई गई है। ठीक है, और इन एक्ट को करना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को करना माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, one thing is transfer of property, and you must remember always that the provision which contained under chapter 2 of the transfer of property act, and in fact the transfer of property as a whole, transfer of property act as a whole only deals with transfer inter vivos, है ना, means it does not deal with transfer intra vivos। ठीक है, मतलब एक लिविंग पर्सन ही दूसरे लिविंग पर्सन को कन्वेयांस कर सकता है इंटरेस्ट का। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी विल लिखी बी के फेवर में और ए की डेथ होने के बाद वो विल इफेक्ट में आई तो उसको भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस एक्ट के पर्पस के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर इंटर वाइवस को डील करता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट which defines the transfer of property and what properties are transferable. It is provided under next section, that is section 6, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होंगी, सेक्शन 6 में ये बता दिया गया है। तो you have to look section 6, what properties are transferable and what are not. So every property is transferable. General perception or general mythology regarding transfer of property is that every kind of property is transferable unless its transferability is barred by express provision of law. What we have got from section 6 is every property is transferable except as provided under section 6 or under any other provision of transfer of property act or any other provision of any other law for the time being enforced. ठीक है, तो जब तक किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक्सप्रेसली बार नहीं किया गया है लॉ के प्रोविजंस में, तब तक हर प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, ट्रांसफरेबल मानी जाती है, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज एन intrinsic nature of property that it must be transferable, it must propagate from one hands to another. ठीक है, one hand to another प्रॉपर्टी का प्रोपेगेशन बहुत जरूरी है ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी का मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी shall be transferable unless transferability is seized by any express provision of law. तो सेक्शन 6 में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। टीपीए में सीधे उन्हें नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कह दिया गया है, तो उनका ट्रांसफरेबिलिटी बार कर दी गई है।
तो जब कभी भी हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं ना कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है कौन सी नहीं है, तो वी हैव टू क्लासिफाई दोज प्रॉपर्टीज इनटू हेड्स. फर्स्ट, द प्रॉपर्टीज non-transferable under TPA और दूसरा है प्रॉपर्टीज नॉन ट्रांसफरेबल अंडर अदर लॉज for the time being enforce. ठीक है, तो दो प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. तो जब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड नॉन ट्रांसफरेबल अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो हमें सेक्शन 6 मिलती है. सेक्शन 6 में ऐसी प्रॉपर्टीज का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिनको ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा. तो पहले हम सेक्शन 6 देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस दूसरे हेड की कि इस हेड में कौन से अदर लॉज हैं जिनमें कुछ के एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा. बाकी तो पूरे इंडिया में बहुत सारे लॉज है जिसमें प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर रोका गया है, लेकिन कुछ के एग्जांपल्स जिससे आप फ्रेंडली हैं मैं आपको दे दूंगा इसके बाद में. पहले हम सेक्शन 6 देख लेते हैं. So section 6 stipulates what may be transferred. Property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being enforced. A, clause A देखिएगा. The chance of an heir apparent succeeding the estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. तो तीन चीजें बताई हैं क्लॉज ए में. द चांस ऑफ एन हेयर एपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट और चांस ऑफ अ रिलेशनशिप ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंसमैन और एनी अदर चांस ऑफ लाइक नेचर. ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, उन्होंने कहा है मियर चांस ऑफ एन हेयर एपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट. कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को सक्सेशन में पाने वाला है, उत्तराधिकार में पाने वाला है, ये क्या है? दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, दिस इज अ चांस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसे सक्सेशन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना. उसका एंसेस्टर उसे छोड़ के जाएगा प्रॉपर्टी की नहीं. हो सकता है कि वो विल क्रिएट करके उसका डिस्पोजिशन अदरवाइज कर दे. ठीक है, तो for the purpose of transfer of property act, the property must be existing, property must be in existence at the time of transfer. अभी हमने कहा ना आपके सामने. दूसरी बात कही गई है the chance of a relation obtaining legacy on the death of a kinsman. अब मुझे इस बात का अनुमान है कि किसी की डेथ होगी तो उसकी जो लीगेसी है, उसकी जो विल है वो मेरे फेवर में होगी और मैं उस विल के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहता हूं. हाउ इट इज पॉसिबल? It is not possible because TPA demands the existed property for the transfer, for the valid transfer. ठीक है. थर्ड कहा गया है इसमें कि any other mere possibility of like nature. So A is a person whose birthday is coming soon and it is the well found perception of A that this time B is transferring a motorbike to A. ठीक है, and A subsequently agrees to transfer his motorbike, which is a future transaction which may A get on his birthday to C. This transfer is not valid in the eyes of Transfer of Property Act. क्यों? क्योंकि यहां पर ये इस चीज की सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि उसके बर्थडे में B उसे गिफ्ट दे देगा मोटरबाइक का, है ना. दिस इज नॉट अ सेटल्ड कंक्लूजन. This is only a perception. This is only an inference. This is only a chance कि वो उसे मिल सकता है. तो any other mere possibility of like nature cannot be transferred because property must be existing at the time of transfer. So clause A of section 6 deals with chance. Chance can never transfer from one person to another
for the purpose of Transfer of Property Act. B देखिए, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एवरी ट्रांसफर मे बी डन with some conditions. The conditions will be based on owners or transferers intention. ठीक है, ओनर्स के या ट्रांसफरर के इंटेंशन पर वो बेस कर सकती है कंडीशन. और कंडीशन कैसी हो सकती है? सब्सिक्वेंट, प्रेसिडेंट और कोलेटरल. तीन प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं ट्रांसफर में. एक कंडीशन प्रेसिडेंट, जिसको ट्रांसफर से पहले पूरा किया जाना जरूरी है. एक होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट, जिसे ट्रांसफर के बाद पूरा करना होता है. और एक होती है कोलेटरल कंडीशन, जिसे ट्रांसफर के साथ साथ पूरा करना होता है. ठीक है, तो उन कंडीशंस के फुलफिलमेंट पर भी कोई ट्रांसफर बेस करता है कि राइट का क्रिएशन होगा या नहीं होगा, या राइट मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा. ठीक है, तो whenever a condition is imposed in a transfer that on breach of subsequent condition the property will be revert back to the transferor, and in such case the right of re-entry over that property may exist, and such right of re-entry shall only be transferable to the owner of the property only, no anybody else other than owner. The property cannot transfer to any person other than the owner of that property. अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है और उसमें कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट इंपोज की गई है, और उस सब्सिक्वेंट कंडीशन के ब्रीच पर उस प्रॉपर्टी में ओनर को, जो ट्रांसफरर था प्रॉपर्टी का, उसको री एंट्री का अधिकार है, तो वो री एंट्री का जो राइट है ना, उसके सिवाय और किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी का लीज किया और उस लीज में एक कंडीशन डाली कि बी उस लैंड में एक्सकेवेशन नहीं करेगा. ठीक है, एक्सकेवेट नहीं करेगा उस लैंड को, और बी हैज कमिटेड सर्टेन एक्सकेवेशन ऑन सच लैंड. मींस बी breached the condition which is imposed as subsequent condition under that transfer. So further a right is created in favor of A regarding re-entry over that property. तो यहां पर जो री-एंट्री है ना, वो बी किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, सिर्फ ओनर को ही देना होगा री-एंट्री का राइट, है ना. तो दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए. थर्ड देखिए, सी, an easement cannot be transferred apart from dominant heritage. So it may be known to you that an easement, whenever an easement is created over a property, there must be two properties, dominant heritage and servient heritage. Easement is a right which is created for the beneficial enjoyment of dominant heritage, है ना. जब कभी, जैसे ए है, ए को अपनी लैंड में पहुंचने के लिए बी की लैंड से होकर गुजरना पड़ता है. सिर्फ एकमात्र ए के पास यही रास्ता है जिसको यूज करके वो बी की अपने लैंड तक पहुंच सकता है. और ये लैंड जो है ना, ये जो रास्ता है, पाथवे है, ये बी की लैंड पर आता है. तो ए अगर उस लैंड से होकर के जाता है और बी का उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, दैट इज 20 years, बी को एक राइट होगा, बी को एंजॉयमेंट का राइट होगा. ठीक है, और वो एंजॉयमेंट का राइट कहा जाएगा ईजमेंट. ईजमेंट का राइट कहते हैं. और ईजमेंट के राइट में जो ए की प्रॉपर्टी है जेड, जहां तक पहुंचने के लिए वो बी की लैंड का यूज कर रहा था, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज. इसको कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज, और इसको कहते हैं, जिसका यूज करके जा रहा था, इसको कहते हैं सर्विएंट हेरिटेज. The heritage which provides service for the beneficial enjoyment of dominant heritage. और इसको कहते हैं dominant owner, servient owner, और इसको कहेंगे dominant owner, जिसका dominant heritage है. तो ये जो हमारा लाइन है ना, सी पॉइंट है, ये कह रहा है कि कोई भी ईजमेंट अकेला डोमिनेंट हेरिटेज से सेपरेट करके नहीं ट्रांसफर किया जा सकता. ठीक है, ये जो राइट टू पाथवे है, ये अकेला इस प्रॉपर्टी से अलग करके नहीं ट्रांसफर किया जा सकता. ये जब भी जाएगा इस प्रॉपर्टी के साथ ही चला जाएगा. जब ये प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो ये भी अपने आप चला जाएगा. इट इज नॉट सेपरेटली ट्रांसफरेबल. ठीक है, जब कभी इस प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर करेंगे तो ये अपने आप इसके साथ चला जाएगा. ठीक है.
फिर अगला देखिए, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. Whenever a right is created as a result of transfer of property, and in such transfer a condition is mentioned which restricts the right to enjoyment of such property to the owner only, then such right to enjoyment cannot be transferred by the owner of property to anybody else. जब कभी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है और राइट टू एंजॉयमेंट सिर्फ ओनर को दे दिया जाता है जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, तो वो ओनर उस एक्सक्लूसिव राइट का ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को. जैसे राइट टू टीचिंग, if a teacher is appointed, if a person is appointed as a teacher in a school, then right to teach, ये उसका जो राइट है वो एक्सक्लूसिव राइट है और रिस्ट्रिक्टेड राइट है, सिर्फ वही पढ़ा सकता है स्कूल में क्योंकि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है. सो इट इज नॉट परमिसिबल दैट सच पर्सन कैन ट्रांसफर राइट टू टीच टू एनीबडी एल्स. ठीक है, तो ये राइट टू एंजॉयमेंट उसी तक सीमित है. और एक एग्जांपल ले तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो व्हीकल्स मिलते हैं उनके नाम से इशू किए जाते हैं, वो एंजॉयमेंट में सिर्फ उन तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते. आगे देखिए, a right to future maintenance in whatsoever manner arising secured or determined cannot be transferred. मेंटेनेंस का राइट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है बिकॉज मेंटेनेंस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन who has affected due to unwanted situation, due to unwanted circumstances in his life, in her life. ठीक है, मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है जो समाज में किसी के वेलफेयर के लिए उसको प्रोवाइड की गई है ना, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डेस्टिट्यूशन, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डिजर्टेशन, for avoidance of desertion, for avoidance of crime in the society. If a person is deserted already, if a person is already deprived from the resources which he must have in his life, so वो उसे क्राइम की तरफ मोड़ सकता है. अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो चोरी कर सकता है, वो किसी अपराध में जा सकता है. तो यहां पर क्या होगा, उसे मेंटेनेंस उसके भले के लिए दिया गया है. तो right to future maintenance cannot be transferred from the beneficiary to any other person. In whatsoever manner it is accrued, it is determined or it is enforced. ठीक है, आगे देखिए, a mere right to sue cannot be transferred. सिर्फ वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. mere right to sue, mere right to sue cannot be transferred. देखिए, a mere right to sue cannot be transferred, but a mere right to sue for certain amount of money is an actionable claim, and that is transferable under the provision of Transfer of Property Act. Section 130 facilitates the transfer of actionable claim from one person to another. ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है ना, वो सिर्फ अनसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए जो आपका मियर राइट टू स्यू है, वो आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. कैसे, देखिए एग्जांपल, ए पब्लिशेस सर्टेन कंटेंट विच इज डेरोगेटरी टू बी, which diminishes the reputation of B in the society. ठीक है, which tarnished the reputation of B in the social recognition. So B has a well profound cause of action for filing a suit regarding defamation for damages. ठीक है, यहां पर B का जो राइट है डैमेजेस के लिए, वो B C को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. क्यों? Because damages are something which are uncertained, which may be calculated, which may be computed by the court. So damage क्या है, अनसर्टेन है. सिर्फ वाद लाने का अधिकार इसके पास है, a mere right to sue, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर यही मनी सर्टेन मनी होता, जैसे 50,000 की रिकवरी का बाद होता, 50,000 रिकवरी का सूट होता, तो ये कर सकता था क्योंकि ये एक्शनेबल क्लेम होता ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. ठीक है, आगे देखिए, a public offices cannot be transferred, nor can the salary of a public officer, whether before or after it has become payable, shall not be transferred.
पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। आप सभी को यह पता है कि पब्लिक ऑफिसेस are the product of extra perception, extra qualification, extra advanced state of mind. A person is provided with public offices must have a distinguished qualification in his life, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा उसके परसेप्शन, एक्स्ट्रा उसकी मेंटल एबिलिटी, उसके कैपेबिलिटी के बेसिस पर उसे दिए जाते हैं। तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है, और अगर वो ट्रांसफर करेगा तो पर्पस ऑफ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, अगर इसको परमिट कर दिया जाए तो वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकेगा। तो फिर कोई भी जिले का डीएम बन सकेगा, कोई भी एसडीएम बन सकेगा, कोई भी तहसीलदार बन सकेगा, कोई भी सिविल जज बन सकता है। तो कैसे ये पॉसिबल है ना। उसकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उसे मिली थी, और ना ही वो सैलरीज अपनी जो उनको सैलरीज मिल रही है पब्लिक ऑफिस के बेसिस पर, ना ही वो अपनी सैलरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सैलरी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब यहां पर सैलरी के ट्रांसफर का मतलब ये है कि उनके हैंड में आने से पहले वो डायरेक्ट किसी को असाइन नहीं कर सकते कि अब आपके खाते में सैलरी आएगी हमारी, है ना। उनके हाथ में आने के बाद, उनके अकाउंट में आने के बाद वो जहां चाहे उसका डिस्पोजिशन कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। बट बिफोर द पेमेंट ऑफ सच सैलरी डायरेक्ट किसी को असाइन नहीं किया जा सकता कि अब उनकी सैलरी आपके खाते में आएगी। ठीक है, आगे देखिए। स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। देखिए, सिविल में जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, है ना, या फिर जो भी सिविल पेंशनर्स हैं, उनके जो स्टाइपेंड्स हैं वो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना, दिए जाते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है वो उन्हीं को मिलेगा ना। वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट मोरालिटी टू परमिट सच काइंड ऑफ ट्रांसफर्स। तो यहां पर इस ट्रांसफर को बार किया गया, उस प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी बनाया गया है। तो स्टाइपेंड्स नहीं ट्रांसफर किए जा सकते, सिविल पेंशंस ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। अगर किसी पर्सन ने अपनी सर्विस को सेटिस्फैक्टरी पूरी किया है तो उसकी जो भी पेंशंस होंगी वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पेंशंस जो मिलती हैं एमएलएस को, एमपीज को, और जो फ्रीडम मूवमेंट्स के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको जो पेंशंस मिलती हैं वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट एच, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। अब ऐसा कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो उस ट्रांसफर के रिजल्टेंट क्रिएट किए गए नेचर के ही अगेंस्ट है। जैसे ए ने बी के साथ में एक ट्रांसफर का एग्रीमेंट किया कि वो उसे इंदौर की सारी हवा बेच देगा, जितना भी ऑक्सीजन इंदौर में है वो उसे सेल कर देगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट है वो ट्रांसफर। तो ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इन प्रॉपर्टीज को हम रेस कम्युनिस कहते हैं। रेस कम्युनिस, है ना। ये अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज हैं और इसमें सबका एंजॉयमेंट है। आज तक ऑक्सीजन लेने के लिए आपके पैसे नहीं लगते सोसाइटी में, आप सांस ले सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो ये रेस कम्युनिस्ट है। ऐसी प्रॉपर्टीज सेल नहीं की जा सकती। ए ने बी को कहा मैं तुम्हें ब्रह्मांड बेचता हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो ट्रांसफर में क्रिएट किए गए इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है, उस इंटरेस्ट के रिपग्नेंट है। प्रॉपर्टी का नेचर और इंटरेस्ट, क्रिएटेड इंटरेस्ट, दोनों रिपग्नेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी। दूसरा देखिए, for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of Indian Contract Act 1872, any transfer which is created for any unlawful object or unlawful consideration shall be a prohibited transaction, shall be a prohibited transfer within the eyes of law। वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी हो वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी, ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यह है कि जिसको लॉ ने प्रोहिबिट करके रखा हुआ है, या जो अगेंस्ट मोरालिटी हो या पब्लिक पॉलिसी हो। सेक्शन 23 में वेरियस इंस्टांसेस बताए गए हैं जब हम ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल कहते हैं। वेयर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, वेयर इट अपोजेस द
provision of law, where it is fraudulent, where it is of nature that may cause injury to other person or property, or where it is against morality or public policy under section 23. तो 23 में अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए कोई ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसा ट्रांसफर भी मान लिया जाएगा कि नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए किया गया है, मतलब वो ट्रांसफर नल एंड वॉइड होगा। सेक्शन 6 के वॉल्यूशन में किया गया कोई भी ट्रांसफर है तो वो नल एंड वॉइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखिए, एनी ट्रांसफर टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी। अब अगर कोई भी ट्रांसफर किया गया है जो ऐसे ट्रांसफरी को किया गया है जो ट्रांसफरी होने के लिए लीगली डिस्क्वालिफाइड है। देखिए, ट्रांसफरर की क्वालिफिकेशन तो सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताई गई है कि दैट पर्सन मस्ट बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, that person must attain the age of majority, and that person must not otherwise disqualified by law to carry out that transfer. All the qualifications are same as provided under the Indian Contract Act, and additionally that person must be entitled to a transferable property. ठीक है, तो वो पर्सन एज अ ट्रांसफरर क्या माना जाएगा? एलिजिबल ट्रांसफरर माना जाएगा। बट ट्रांसफरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन ऐसी बताई नहीं गई है, बट कहीं कहीं लॉ के प्रोविजंस में ट्रांसफरी को लीगली डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया है। जैसे सेक्शन 136 ऑफ द टीपीए में एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर किसी भी कोर्ट के ऑफिसर या जज को नहीं किया जा सकता है जिसने उस एक्शनेबल क्लेम के साथ किसी मैटर में डील कर लिया है, जिनकी कोर्ट में वो मैटर लगा हुआ उस एक्शनेबल क्लेम का। तो अगर एक्शनेबल क्लेम के केस में कोई भी ट्रांसफर हो रहा है और जज या कोर्ट के किसी भी ऑफिसर ने उसके साथ कोर्ट में एज अ मैटर डील किया है तो वो डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफर ही होगा उस केस में, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी को किया जाता है वो नॉन ट्रांसफरेबल है ना, वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल मान ली जाएगी और वो जो ट्रांसफर है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर देखिए क्लॉज आई, nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the former of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of a court or ward to assign his interest as such tenant, farmer or lease. So last clause deals with the person having restricted or limited right over a property. ऐसे रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड राइट्स वाले लोग भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे टेनेंट, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई टेनेंट है, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई टेनेंट है, वो टेनेंट अगर उसे लिमिटेड राइट दिए गए हैं प्रॉपर्टी में, किराएदारी में, तो वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरा, अगर किसी भी फार्म के संबंध में कोई भी लैंड है और उस लैंड का कोई फार्मर है, कोई किसान है ना, तो वो किसान उस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता जहां पर उस लैंड में लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया गया है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू अगर चार्ज है, अनपेड है, तो वो फर्स्ट चार्ज ऑन सच लैंड माना जाता है। इसलिए वो उस फार्मर को भी राइट नहीं है कि वो उस लैंड में अपने इंटरेस्ट को कन्वे करे किसी दूसरे पर्सन को। और तीसरा, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में अगर किसी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है गार्डियन या वार्ड के थ्रू और उस प्रॉपर्टी को लीज में दिया गया है तो लेसी भी नहीं कर सकेगा। तो टेनेंट, फार्मर एंड लेसी, तीन लोग ऐसे हैं जो लिमिटेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। होप यू हैव गॉट सर्टेन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग्स विद दिस लेक्चर। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।